Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 4th December 2021. So, let's start today's discussion. The first article is about a lesser migratory bird stated as florican bird. So, the longest migration route of lesser florican from Rajasthan has been tracked. So, from ecological perspective, we'll study about this bird and its route also. In a major discovery, the longest in-country migration route of the lesser florican, the endangered bird of the bustard group. So, it belongs to the bustard group has been tracked for the first time from Rajasthan to Maharashtra's Ahmednagar district. The mystery of the fast disappearing bird may be soon resolved with the help of the satellite transmitter fitted on them. So we were able to track them, the route that they are using, because it was seen that within few days they were disappeared from the place or from the habitant places. The telepatry exercises was undertaken in the Shokalia landscape of Ajmer district to trace the journey of lesser florican from the breeding grounds place of origin to the southward side. और लगभग ये बोला जा रहा है कि ये लोग का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस होता है, जो ये लोग रूट लेते हैं लॉन्गेस्ट रूट, वो अप्रॉक्सली 1000 किलोमीटर का रूट होता है, जर्नी होता है. सो ये लोग ड्यूरिंग द मानसून ट्रैवल करते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए. लेसर फ्लोरिकन का अगर साइंटिफिक नाम बताओ, साइफोटाइट्स is a small and slender bird species belonging to the bustard group found in a tall grasslands, for which Dehradun based Wildlife Institute of India has launched a recovery program. The endangered bird is observed in Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat, and some places of the regions during the monsoon season when it breeds and later disappears. The bird is listed in the critically endangered in the IUCN. IUCN ने उन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड के ग्रुप में डाला है और धीरे धीरे ये देखा जा रहा था कि इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुई जा रही थी. देयरफॉर उन्होंने क्रिटिकली एंडेंजर्ड के ग्रुप में उन्हें क्लासिफाई किया है. Two subsequent experiences in which the transmitters were applied on the back of their male bird depicted that the lesser floricans had flown to Agra near Ujjain and a grassland habitat between Baswara and Ratlam. The signals were emitted till the tiny gadget continued to function, making it difficult to decipher the bird's migrating route and their residing spots. तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो रूट है 1000 किलोमीटर का जर्नी होता है. अकॉर्डिंग टू द ट्रैक ये बताया गया कि जिगजैग फ्लाइट्स के थ्रू ये अप्रॉक्सीमेटली ट्रैवल करते हैं 1000 किलोमीटर्स, जो इन्होंने रूट बताया है शेवगांव से शेवगांव वेस्ट ऑफ अहमदनगर इन महाराष्ट्र, कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 1000 kilometers from its breeding ground. The transmitter's signals were received for some time continuously from the same region until the battery finally failed. The WII scientist told The Hindu that this was the longest distance covered by them by the floricans according to the records that we have. So अब थोड़ा सा फ्लोरिकन के बारे में पढ़ लेते हैं. सो दिस वाज अ रीसेंट डिस्कवरी मेड बाय देम. इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से फ्लोरिकन अगर पे क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में तो आपको याद रहना चाहिए कि ब्रीडिंग ग्राउंड क्या है, क्या साइंटिफिक नेम है और कौन से ग्रुप में ये आते हैं. सो इनके ऊपर जो लीगल प्रोटेक्शन का वर्क जो अभी हम देते हैं कि IUCN और रेड लिस्ट, ये सब ये 1970 से पहले तक नहीं था. 1970 के बाद ये देखा गया कि बहुत लार्ज नंबर में इनकी हंटिंग की जा रही थी, बिकॉज ऑफ विच देयर वाज अ डिक्रीज इन देयर पॉपुलेशन इन देयर हैबिटेट. ठीक है, जिसके वजह से इनको बचाने के लिए इनको फिर ये लिस्ट में डाला गया.
और अगर इनकी बात करें तो आउट ऑफ ऑल दी बस्टर्ड बर्ड्स ये सबसे स्मॉलेस्ट बस्टर्ड बर्ड बोले जाते हैं वर्ल्ड में, जिनका वजन अप्रॉक्सीमेटली 500 to 750 ग्राम्स का होगा, और जो सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, ओनली इन इंडिया। सो ये जो रेसिडेंट है ये हमारे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और बंगाल फ्लोरिकन है, इन दोनों के मिक्स रेसिडेंट है ये, और इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेड लिस्ट में ढाला गया है। Fewer than 150 great Indian bustards survive and less than 350 florican remain scattered in the small fragment population which were found in Brahmaputra floodplains. Historically, the lesser floricans inhabited Spain from Gujarat and Rajasthan to West Bengal and Odisha from eastern Uttar Pradesh to Kerala. It was once only found in Nepal, and there were occasional reports of sighting from Pakistan, Bangladesh and Myanmar. Today it is viable कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो एक रिस्ट्रिक्टेड नंबर तक रुकी हुई है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन देयर पॉपुलेशन, एंड कहीं ना कहीं इसका रीज़न माना जाता है दो इंक्रीज ऑफ हंटिंग इन 1970 इज़ द रीज़न ऑफ इट। अगर इनका देखा जाए जो हैबिटेंट एरिया है तो दैट इज़ द ग्रासलैंड एरिया जहाँ पर वो लोग रहते हैं। यहाँ पे भी आर्टिकल में हमने देखा ग्रासलैंड में वो लोग जाते हैं फॉर दिया ये हैचिंग, या फिर हम बोल सकते हैं उनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए। सो ये जो ग्रासलैंड एरिया है ये बहुत मतलब इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों के हैबिटेंट है, जैसे कि पिग्मी हॉक हो गए, वाइल्ड बफेलो, नीलगिरी तार हो गए, फिर हमारे स्वाम डियर्स हो गए, हॉक डियर्स हो गए। ये मोस्ट ऑफ देम जो है ग्रासलैंड वाले एरिया पे हैबिटेंट है, और ये सब एरिया पे कंट्रोल रखना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज ग्रासलैंड एरिया आपको लेस देन 1% ऑफ कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग देता है। सो जिसके वजह से हमने लास्ट जो इनका ट्रैकिंग हो पाया वो उधर तक ही हो पाया, और अभी रिसेंटली मैंने जैसे आपको बताया कि राजस्थान के शोकिला हमने सेंचुरी से देखा था, वहाँ से पास आउट होके वो दूसरे एरियाज़ में गए हैं। तो आपको याद रखना है कौन से एरिया के हैं एंड ऑल द स्टफ्स दैट आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल भी हमारे लिए इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है। एक न्यू बर्ड स्पीशीज़ हमें मिला है जिसको बोला गया है शटरबर्ग, जो कि एक न्यू फाइंडिंग है सिक्किम में। इनकी मतलब इनकी प्रजाति, इनके स्पीशीज़ के ज़्यादा चीज़ें नहीं देखे गए हैं रिसेंटली ये हम लोग के नज़र में आए हैं। So this chocolate bordered flitter, new butterfly species discovered by chance via photo. When Sonam Wangchuk Lepcha from Dozong in North Sikkim started watching butterflies and taking pictures of them, he was not taken very seriously by the people around him. But now his hobby has led to the discovery of new butterfly species, which is very close relative to the south eastern चाइना। मतलब इस ये वाले बर्ड की जो स्पीशीज़ है यूजुअली साउथ ईस्टर्न चाइना से लेके हांगकांग के बीच में ये बर्ड के स्पीशीज़ आपको मिलते हैं। सिंस 2016 मिस्टर वांगचुक लेप्चा हैज़ बीन इन द हैबिट ऑफ फोटोग्राफिंग द बटरफ्लाइज एंड सेंडिंग देयर पिक्चर्स टू द एटमोलॉजिकल बेस्ड NCBS, that is the National Center for Biological Science, Bengaluru, to identify and upload them on the Butterflies of India website. In 2020, he contributed the picture of golden yellow butterfly with the brown border and spots, जो कि ये है। All the observations submitted to his website are reviewed by an expert panel, and they realized that this was a species previously unknown to the India, and it was a new species. The new species of butterfly is now named as chocolate border flitter, जो कि यहाँ पे दिया है चॉकलेट बॉर्डर फ्लिटर। साइंटिफिक नाम अगर मैं इसका बात करूँ तो दैट इज जोग्राफेटस। Zographus zonguinus. Okay, this is the scientific name of orange bordered flitter, and it was discovered in the northern Sikkim place
It is a close relative to two different type of ये butterfly species which is found in southeastern China and Hong Kong region, जिसकी वजह से हमने बोला ये species उनसे belong करता है और इनका नाम भी इसकी वजह से आया। जोग्राफिटिस जो है वो चाइना में जो बटरफ्लाई मिलता है उनके नाम पे है, और ये जो जोंगिनस है ये हांगकांग में मिलने वाले बटरफ्लाई के नाम पर है, इसके लिए मिलकर इसे बनाया गया है। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द स्पीशीज differ slightly in the internal structure of males also differ. The details were published in the papers. So इसके बारे में और अभी स्टडी की जा रही है कि और कहाँ कहाँ मिल रहा है, बट इट इज़ अ न्यू डिस्कवरी जो आपको याद रखना है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। Now we'll move to the next article. The next article is Dam Safety Act will bring in unified पॉलिसीज़। तो कुछ टाइम पहले हमने मुल्ला पेरियार डैम पे देखा था कि कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा था कि क्या कर सकते हैं डैम को लेकर, तो उसके रिलेटेड ने बोला है कि दे विल ब्रिंग अ एक्ट जो कि कहीं ना कहीं इट विल बी गुड फॉर बोथ दी स्टेट्स एंड इन देयर फंक्शनिंग। Best means of finding the solutions of Mulla Periyar Row is perhaps the bill, says the Jal Shakti Ministry. Rajya Sabha passed the Dam Safety Bill 2019 on Thursday. The bill promoted 4-hour debate in the upper house and several members voiced oppositions as a key aspect. B.R.K. Pillai, who is the member of Krishna River Management Board and the senior official of Jal Shakti Ministry, explained the significance of this bill. So, उनका ये सबसे पहला चीज़ ये था कि it is the most significant flashpoint regarding the dam safety which was interfered by the center. So, आप ये बोला गया कि how can you address the bill? The bill was lead to the establishment of National Committee of Dam Safety and the National Dam Safety Authority. ये दो बॉडीज बनाए गए थे मुल्ला पेरियार डैम को रिजॉल्व करने के लिए इशू को, एंड the central and the state agency will evolve unified dam policies and protocols for the entire country. This body will act as a regulatory body for ensuring the implementations of policy, guidelines and standards. जो ये बॉडीज़ के नाम बताए थे NCDS जो है नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी, वो इसके अंडर बनाया जाएगा जो सारे प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस पर ध्यान देगा कि वो इम्प्लीमेंटेड हो रहा है कि नहीं। सेम चीज़ जो है स्टेट लेवल पे भी बनाया जाएगा जिसको हम SCDS बोलेंगे, दैट इज़ द स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी। हर SCDS जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्टेट्स पे ध्यान देगा उनके सॉल्यूशंस और गाइडलाइंस पर। आउट ऑफ ऑल दी डैम्स अगर बेस्ट पॉसिबल मीन्स उनको यही लगा कि मुल्ला पेरियार डैम को सॉल्व करने के लिए ये होगा कि हम जो ये बॉडी बनाएंगे जो कि शायद ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखेगा और उस पर प्रॉपर वर्किंग करेगा, जो कि इस आर्टिकल में बताया है। थोड़ा सा और जान लेते हैं डैम सेफ्टी एक्ट के बारे में। सो डैम सेफ्टी डैम सेफ्टी एक्ट वापस हम बात कर लेते हैं। ये बिल था और मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए ये चीज़, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यसभा ने लैंडमार्क डैम सेफ्टी बिल रेक्टिफाई किया 2019 में, तो आप क्या बताओगे। सो इस बिल के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया नेशनल कमिटी ऑफ डैम सेफ्टी एक कमेटी बनाया जाएगा जो कि सारे ही डैम सेफ्टी पॉलिसीज़, प्रोटोकॉल और प्रोसीजर्स पे ध्यान देगा। एक रेगुलेटरी बॉडी रहेगा, इसके अंडर ही एक रेगुलेटिंग बॉडी बनाया जाएगा, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। सो ये अपर बॉडी है, उसी के अंदर एक बॉडी बनाया जाएगा नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, जो कि ये सारे हॉलिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग पर ध्यान देगा। स्टेट लेवल के हिसाब से ये जो नेशनल लेवल है उसके वैसे ही स्टेट लेवल पे बॉडी बनाएंगे। और द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डैम सेफ्टी एंड क्लाइमेट चेंज हैव बीन एक्नॉलेज्ड बाय द बिल। तो क्लाइमेट चेंज पे भी वो ध्यान देंगे। इमरजेंसी एक्शन प्लान्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव डैम सेफ्टी प्रोविजंस एंड विल बी रिव्यूड बाय द एक्सपर्ट्स अंडर दिस बिल।
It also provides for the flood warning systems to protect the inhabitant. In order to follow the compliances, there is a penalty imposed by the dam owners. So ये बिल जो है एक तरीके से एक नया फेज होगा फॉर ऑल दी स्टेट्स जहाँ पर डैम या फिर ये सब चीज़ को लेकर जो स्टेट केओस या फिर कॉन्फ्लिक्ट रहता है, प्रॉपर सर्विलेंस इंस्पेक्शंस और ऑपरेशंस रहेंगे हर कुछ कुछ टाइम पे. सो दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बिल कि लोग उस प्रोटोकॉल को माने. इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया वर्ल्ड में जो है थर्ड लार्जेस्ट डैम ओनिंग कंट्री बनता है. अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द डैम्स जो है यहाँ पर 25 साल से भी पुराने डैम्स हैं. और इंडिया का सेफ्टी रिकॉर्ड ये देखा गया है कि ये डैम्स का जो एज है ये 100 ईयर्स तक का एज जाता है. इट इज़ दैट मच स्ट्रॉन्ग. आज तक हमने नोटिस किया है कोई भी डैम फेलियर नहीं हुआ है, बट ये इश्यूज ऑब्वियसली बाहर आए हैं. सो टू रेजुविनेट दैट इश्यूज, टू सॉल्व दैट इशू, ये बॉडी की बात की गई है. लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा ये बॉडी हमारे स्टेट्स को. सो दैट वाज अबाउट द डैम सेफ्टी एक्ट. नाउ विल मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल हमारा बता रहा है ईस्टर्न फ्लीट्स टू हैव द कैरियर बैटल ग्रुप. सो one trials are over. INS Vikrant will be based in the Vishakhapatnam, says the Vice Admiral Dasgupta. So the day is not far when the Eastern Fleet, headquartered in Eastern Naval Command in Vishakhapatnam, will boost a carrier battle, a group of its own indigenously built. So Eastern Fleet is basically वहाँ के जो हमारे ships हैं वो अपने साथ जो है इनबिल्ड कैरियर बैटल्स भी मतलब ज्वाइन करके या फिर साथ में लेकर रहे, मतलब एक अपडेशन होगा जिसमें कि कैरियर बैटल्स उनमें इवॉल्व किए जाएंगे या कनेक्ट किए जाएंगे. हिंटिंग दैट द aircraft carrier is undergoing a rigorous sea trial, the flag officer commanding in chief of the Eastern Naval Command, Vice Admiral Biswajit Dasgupta, said that once the trials are over, INS Vikrant would be based in Vishakhapatnam. The efforts were ensured that the commission during August 2022 to command the victory of Azad Amrit celebration. उसी के अंडर इंडिजिनियसली बिल्ड ये कैरियर बैटल बनाया जा रहा है. आफ्टर द इंडक्शंस ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरियर माइट बी बेस्ड इन द वेस्टर्न कमांड फॉर अबाउट अ ईयर. और इसमें जो है स्क्वाड्रन जो इन्वॉल्व कर रहे हैं दैट इज MiG-29 के स्क्वाड्रन. Speaking of the enhancement of the air assets of the eastern seaboard, Vice Admiral Dasgupta said that MiG-29K, which is the part of the air assortment on board INS Vikrant, would have squadrons in Vishakhapatnam. It is on the card but held the momentum due to some of the technical issue. तो दिस इज द मेन स्क्वाड्रन जो विशाखापट्टनम में बेस्ड रहेगा. एंड द नेवी इज ऑल्सो उसके साथ और 4 P-8-1 जो एयरक्राफ्ट हैं उसके साथ ऐड किए जाएंगे इसमें. वी आर वर्किंग टू इंडक्ट मोर लॉन्ग रेंज UAVs एंड ऑलरेडी इंडक्टेड 2 of which टेस्ट आर ऑन द इवेल्युएशन प्रोसेस. So it is a development for or the new mechanism progress done by Indian Navy. Now next article पे अगर हम जाए तो एक नया साइक्लोन आने वाला है जिसका नाम है जवाद, टू ब्रिंग हैवी रेन्स टू ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश. ठीक है, सो इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा. पीपल्स आर बीन इवैक्यूएटेड टू शेल्टर. ऑफिशियल्स के हिसाब से डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं. साइक्लोन जवाद जो है बे ऑफ बंगाल में हमारा फॉर्म हुआ है. अगर इन सिंपल में बताऊं, यू कैन लुक एट द पिक्चर. ठीक है, हमारा बे ऑफ बंगाल में ये साइक्लोन बन रहा है ये. और संडे को ये बताया गया था कि इसका विंड जो एक्सपेक्टेड टच है वो 90 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड से हो जा रहा है, जो कि हमारा आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल सभी को अफेक्ट करेगा. सो द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेड दैट
Cyclone will briefly again strengthen and become a severe cyclone storm, but is unlikely to make a conventional landfall. It is expected to skirt the Paradip plots of towards वेस्ट बंगाल. तो यहाँ से वेस्ट बंगाल तक का ये जर्नी होगा. करेंटली जो है 650 किलोमीटर्स अवे है पैरमडीप से, एंड इज एक्सपेक्टेड कि आंध्र प्रदेश की कोस्ट को पहुँचेगा सैटरडे को. एंड स्पेक्यूलेशन किया जा रहा है कि सैटरडे तक आंध्र प्रदेश के कोस्ट तक आएगा ये साइक्लोन. दिस साइक्लोन इज एक्सपेक्टेड टू बी मच लेस इंटेंस एंड रीसेंट वंस सच एज तितली एंड नोवेर near extreme ones like Fani or Handu. And Union Cabinet Secretary Rajiv Gona chaired a meeting of National Crisis Management Committees to review the preparedness, जिसमें कि cyclones shelters were given, evacuations of people were done, national disaster रिस्पॉन्स फोर्सेस को भी लगाया गया है सभी जगह पर. अगर आप देखोगे यहाँ पे ये पिक में आपको पता चलेगा कि सभी स्टेट्स में एनडीआरएफ अपने अपने जगह पर काम करना स्टार्ट की है बाय इवैक्यूएटिंग द पीपल. और सब जगह के डिप्लॉयमेंट्स अलग अलग है. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये सभी जगह पर कर रहे हैं. अब थोड़ा सा साइक्लोन के बारे में और देख लेते हैं हम लोग, एज इट इज़ अ न्यू वन. सो साइक्लोन की टॉपिक अगर हम बात करें, रिसेंट टैकल करने के लिए हमारे एनडीआरएफ को तैयार किया गया. उसके बाद आईएमडी ने ये भी नोटिफाई किया कि ये जो लो प्रेशर है वो बेसिकली बे ऑफ बंगाल, सदर्न ईस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल में बन रहा है, स्टार्ट हो चुका है. इसका कॉन्सेंट्रेशन इज़ मच इंटेंसिफाइड, जो कि आगे जाकर 90 से 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगा. जवाद जो नाम दिया है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है आईएमडीसी में अपने सारे कंट्रीज़ 13 कंट्रीज़ नेम्स देते हैं अपने अपने और फिर सिलेक्शंस होते हैं. जवाद का जो नाम है ये सऊदी अरेबिया ने दिया है, जिसका मतलब है जनरस और मर्सीफुल. जनरस और मर्सीफुल, जो कि सऊदी अरेबिया ने इसका नाम दिया है. और पैटर्न आप लोग को भी मैंने बता दिया था कि आईएमडीसी को जो है नाम जाता है, सभी कंट्रीज अपने 13 नाम देते हैं और अल्फ़ाबेटिकली सब कंट्रीज़ के नाम चूज़ किए जाते हैं. उसके बाद एनडीआरएफ की अगर मैं बात करूं तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों जगह पर ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ दिस जवाद साइक्लोन. इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसको टैकल करने के लिए लोगों का इवैक्यूएशन, शिप और एयरक्राफ्ट वहां से हटाना स्टार्ट कर चुके हैं. सो देखते हैं सैटरडे तो आज ही है, कुछ आर्टिकल आता है कि नहीं कल तक, कि साइक्लोन आया कि नहीं आया. वैसे तो क्लाइमेटिक चेंज हम देख ही रहे हैं, बट लेट्स सी क्या होता है. सो दैट वाज फॉर टुडे. आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.